Uh, Good morning, everyone. Thank you, everyone, to join us for this session today. Good morning. And before we start, I'll just quickly introduce myself. My name is Akanksha, and I'm working with Khushi. Uh, thank you to everyone for taking out time on a Saturday afternoon to discuss a very important issue of challenges that we are facing in school education. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका वो है स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड एंड हम एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि बहुत जरूरी है एजुकेशन, लेकिन उसके साथ ही जरूरी है कि हम किस तरह से कोविड चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें ताकि हम जो हमारा ओवरऑल आउटकम है उसको हम अचीव कर पाए। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी। हमारे जो पैनलिस्ट है, मैं एक बार उन सब से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। सो सबसे पहले मैं बात इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी मोनिका लखनपाल जी को। और मोनिका लखनपाल जी इज co-managing partner ऑफ गगर एंड पार्टनर सॉलिसिटर्स एंड एडवोकेट। अपने लीगल एक्यूमेन एंड प्रैग्मेटिक लीगल स्ट्रैटेजी के लिए मोनिका बहुत एक जानी मानी हस्ती है। उसके साथ ही मोनिका ने काफी पॉक्सो और पॉश कंप्लायंस के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर मोनिका ने काफी एक्सटेंसिव काम किया है। उसके साथ ही शी इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन सैनिटाइजिंग कंडीशनिंग द वुमेन वर्किंग फोर्सेस सच एज IPS एंड CISF ऑफिसर्स। तो मोनिका जी, आपका हम सब बहुत स्वागत करते हैं फॉर दिस पैनल डिस्कशन। थैंक यू फॉर कमिंग। उसके साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मंजू खत्री जी को। मंजू खत्री is working as Deputy Director Education in South Delhi SDMC। मंजू जी के पास बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको सिस्टम के साथ काम करते हुए। 15 years she has spent in teaching children and 15 years in administration। तो उसके साथ ही उनको काफी अवार्ड्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हैं। अभी उनको रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे भी एक अवार्ड उनको दिया गया था इन 2020। तो थैंक यू सो मच मंजू जी, आज टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ यहाँ आने के लिए। मैं साथ में ही इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारी थर्ड लवली पैनलिस्ट को, जिनका नाम है करिश्मा मेहरा। करिश्मा मेहरा एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है, फैमिली थेरेपिस्ट है एंड पेरेंटिंग कोच है। उसके साथ ही वो दिल्ली क्यूब एसोसिएशन की डायरेक्टर भी हैं एंड शी इज अ प्रैक्टिसिंग ग्राफिकोलॉजिस्ट एज वेल। करिश्मा इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। वो इस वक्त DPS RK पुरम मैक्स हॉस्पिटल एंड सरदार पटेल विद्यालय के साथ भी काम कर रही हैं। उसके साथ भी हैप्पीनेस क्वोशंट पे करिश्मा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं दिल्ली में। थैंक यू करिश्मा जी फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे and I hope to have introduce you properly, and once we get into the session I would request all of you to please share your experiences, your work, and so this is how we want to structure our meanwhile we'll also take up questions जो हमारे पास लोग भेजेंगे, हम उन questions को भी answer करेंगे। So I would like to start with Monica ji first. I would request her to set the context and help us understand the importance of education for marginalized sector. वैसे हम सब इसके बारे में जानते हैं, but I would like Monica to unpack this for us and for the rest of the session. Thank you. Over to you, Monica ji. Thank you so much, Akanksha. Akanksha, I think everyone here knows education is the most important. But I'll start by saying that education actually transforms our life from mere survival to actually a more meaningful and dignified life. The education system of our country is an extension of fundamental right to life, which is guaranteed to every citizen under Article 21 of the Constitution. This right ensures us a life of dignity and respect, and also protects us from any kind of abuse or exploitation. But what happens in practical sense? Unfortunately, due to lack of awareness or education to our own fundamental rights, which I call them our own belongings, people become more vulnerable to any kind of abuse or exploitation.
to ensure education for every citizen and to tackle this problem of exploitation and the Constitution in 86th Amendment Act 2002 inserted an Article 21 provide free and compulsory education for all our children in the age group of 6 to 14. Following this, the Right to Education Act 2009, the consequential legislation envisaged under Article 21A, which also means that every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable qualification and qualification of formal school satisfied central essential normals and standards. Education is by far, according to me, the best means to provide the insurance to our life is also most important fundamental right, which not only ensures us the right to education, but also provides us with a vision and sense of belonging vis-a-vis our fundamental rights, which are guaranteed to us under the Constitution, like right to life, right to education, right against exploitation, and so on. But if we truly see, even the true meaning of freedom also emanates from education. Imagine a person who has no idea about his own rights. Will there be any difference for him if he was still under the British rule or part of a free independent nation? Not really, because he would still feel exploited and there'll be lack of awareness about his basic rights. So lack of education not only compromises on our fundamental rights, but also takes away the true meaning of existence from us. I would also like to mention here the importance of legal education here, because that also becomes an integral part of our curriculum, school curriculum, and immunizes every child against any kind of injustice, exploitation, and provides them with a sense of ownership vis-a-vis their own right, as I said before, and develop confidence to fight for them. You know, Akansha, everyone here who's watching this is well aware that education is very important because it provides us with decent opportunities of employment, helps us with self-empowerment, provides us with financial stability, and so on. But education, in my own opinion, in real sense, has a wider meaning attached to it. It's not just limited to studying course books, but also adopt them into practice. For example, for any nation to prosper, it is the first step to develop critical thinking, problem solving skills in our own citizen to make better choices and decisions, especially for a democratic nation like ours. Growth of a nation is never achieved by just few individuals or an isolated approach adopted by our government, but it is by the congregation of developed minds of all our citizens, and that can only be achieved through real knowledge and awareness of our own capability. So I urge all children who are actually watching this to actually learn and imbibe the knowledge and not just read books and not understand. Question everything that comes to their mind. Request the concerned government to actually show thought-provoking documentaries of children all over the world and their achievement to inspire our future generations, especially living in rural areas, to develop their minds and create awareness, which they may be kept away from. Because what happens in rural areas, they don't have the means to even watch all this. So maybe we can have a screens for them to show these kind of programs. Every mind is capable of growth. Our job is only to spread knowledge. If we actually go back to our NCRT first framework in 1975, that awakening of social consciousness, the development of democratic values, and a feeling of social justice, national integration are extremely important. All subjects taught in such manner so as to foster the spirit of scientific humanism. I think that is really important, which has been there as part of our curriculum. The primary and secondary education, which was 1988, identifies the values of equality, democracy, secularism, removal of social barriers, creating our sense of common citizenship. These values and social norms mentioned in NCRT are actually social development. Every nation must carry it forward to achieve the larger goal of our society. However, everything that I've discussed right now may just remain as legislation, which will only be there to enrich our legislation and our constitution.
but will never be put to use till we are educated or we educate children to actually move this forward. I think my time, I want to respect my time, Akanksha, so you would have to help me out. How much can I speak? Because I'll keep going on. Sure. I think बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से इसका कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, और आपने ऑल्सो बात किया है कि किस तरह से हमें क्या करना होगा कि हमारी एजुकेशन हर किसी तक पहुंच पाए, और हम सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी से एक क्वेश्चन मैं मंजू जी से पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, कि अभी जिस तरह से हमारा कोविड की सिचुएशन है और हम लॉकडाउन में है, और बच्चे तो स्पेशली लॉकडाउन नहीं भी है तो बच्चों को घर में रहना है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जो आपको लगता है, क्योंकि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो आपके हिसाब से मैम क्या चैलेंजेस हैं जो हम बच्चों को डिलीवर कर पाए एजुकेशन आउटकम्स ड्यूरिंग दिस कोविड? तो आपको किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, या आप शुरू करना चाहेंगे कि आप थोड़ा बताएं कि किस तरीके के आप लोग काम कर रहे हैं इस वक्त बच्चों को एजुकेशन पहुंचाने के लिए? बच्चों को एजुकेशन पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के समय सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए, क्योंकि प्राइमरी बच्चा है, छोटा बच्चा है, उनसे संपर्क बनाए रखना था कि किस तरह से हम उनसे जुड़े रहें। जहाँ बाकी बच्चे ई लर्निंग के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू इतनी अच्छी एजुकेशन कर रहे थे, वहाँ हमारे सामने ये चुनौती थी कि ये बच्चे जिनके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उनको किस तरह लर्निंग से जोड़ा जाए। क्योंकि पहले तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो सफर रहा लोअर क्लास ही रहा, लेबर ही रहे। और जब हम बात पहले पढ़ाई की जब करेंगे, पहले हमें अभिभावकों से संपर्क बनाना था कि आप सब ठीक ठाक है, आप सबको खाना मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड सम फूड हंगर सेंटर्स आल्सो, राशन सेंटर्स आल्सो इन आवर स्कूल्स, तो पेरेंट्स आर कमिंग देयर। और उसके बाद जब एक बार सब सेटल हो गया कि हाँ भाई खाना ठीक है और वो ठीक से रह रहे हैं, तो हमने अभिभावकों को फिर कन्विंस किया कि अब पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन से स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, आप भी घर पे ही हैं, तो क्यों ना पढ़ाई स्टार्ट की जाए। उनके पास क्योंकि अभाव है मूलभूत सुविधाओं का, तो स्मार्टफोन्स बहुत पेरेंट्स के पास नहीं थे। ये हमने कैलकुलेट करा लिया था, किसके पास स्मार्टफोन्स हैं, किसके पास टीवी है, रेडियो है, एक अपना वर्कआउट किया था कि किस तरह से हम इस पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। और फिर हमने पाया कि भाई पेरेंट्स को हम कन्विंस कर पाए, तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, मेरा फोन है और मैं इस समय अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, आप भेजिए। तो फिर हमने स्टार्ट किया कि बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जो व्हाट्सएप जिनके पास स्मार्टफोन थे, जिनके पास सिंपल फोन थे, उनके लिए एसएमएस किया, ऑडियो भी छोटी सी बना के डाली, कुछ बताया कैसे उनको एक बार स्टार्ट करें। एकदम शिक्षा पढ़ाई एकदम स्कूल वाली लेवल की तो स्टार्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन निजी जिंदगी से उसको जोड़ के और इस समय जो जरूरी थी बातें उनके साथ स्टार्ट की, उनके साथ शेयर किया, उनसे पूछा। और फिर उसके बाद हमने इनके लिए, हमें लगा कि हमारे साथ 20% बच्चा जुड़ गया है और हम क्यों ना इनकी पढ़ाई स्टार्ट करें। उसके बाद टीचर्स ने मिलके इनके लिए कंटेंट बनाया, क्योंकि अब पूरा सिलेबस की बात भी वो नहीं रही है, सब लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि सिलेबस को थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। और उस हिसाब से टीचर्स ने इनके लिए कंटेंट बनाया। छोटे छोटे वीकली इनको हम वर्कशीट दें, फोन के ऊपर छोटी छोटी वीडियो भेजें। ये सब प्रयास चल रहा है हमारा, हम इसको कर रहे हैं। हमारा टीचर मल्टीटास्क काम करते हैं हम लोग, क्योंकि फूड हंगर सेंटर्स पे भी चले और राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, और अब बच्चों की ई लर्निंग भी हम करा रहे हैं, और थ्रू व्हाट्सएप कुछ बच्चों को वॉइस मैसेज के थ्रू, कुछ को एसएमएस के थ्रू। और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए अब फिर हमने प्रयास किया, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं राशन लेने के लिए, तो क्यों ना स्कूल्स पे वर्कशीट बना के छोटी छोटी इनके लिए हमने रखनी शुरू करी, कि वो एक दिन आए, मंडे को ले जाए और नेक्स्ट मंडे आके वापस सबमिट कर दें जो बच्चे ने किया, और नेक्स्ट वर्कशीट उनके लिए ले जाए। टीचर्स इस पे बहुत काम कर रहे हैं, डिफरेंटली हटके बुक्स से कंटेंट बना रहे हैं और उसके बाद वर्कशीट बना रहे हैं। और हमारे साथ चैलेंज ये भी है कि हमारा एक स्टैंडर्ड बच्चे का पूरी क्लास का नहीं होता है, वी हैव डिफरेंट
एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। क्योंकि जो आरटी एक्ट के तहत आते हैं वो अकॉर्डिंग टू एज आते हैं, तो उनके लिए भी अब हम डिफरेंटली काम कर रहे हैं। बिलो एवरेज के लिए अलग से शीट बना रहे हैं, अबव एवरेज के लिए अलग से बना रहे हैं और एवरेज के लिए अलग से बना रहे हैं। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से टीचर्स के सहयोग से बहुत अच्छी तरह बच्चों के थ्रू हम पहुंच रहे हैं। और बच्चे गांव चले गए हैं, काफी सारे बच्चे यहाँ से प्लान कर गए हैं, लेकिन वो बिहार से भी और यूपी से भी हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं। और हमारा प्रयास उनसे जुड़े रहना ही है, और हम उनको ये कहते हैं कि आप यही हैं, हमारे साथ ही हैं, आपका ये स्कूल है, और जब सब शीघ्र ठीक हो जाएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में यहीं पे आ जाए। थैंक यू आप ने जो हमें अभी इंसाइट्स दिए, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स हैं, चैलेंजेस भी हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे चैलेंजेस को हाईलाइट किया। करिश्मा जी, आपसे एक सवाल है, इसी के रिलेशन में है वो। साइकोलॉजिकली जो बच्चों का माइंड और बिहेवियर है वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है? ऑफ कोर्स इम्पैक्ट हम बात कर रहे हैं, लेकिन how are they responding to this new way of learning? So what is your opinion on that? So I really enjoyed to know that and I was very happy to know कि हमारी गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है हमारे बच्चों के लिए, जो शायद हमें घर बैठ के नहीं पता चल रहा, बट वहाँ पे जब राशन की लाइन में जो वो वर्कशीट मिल रही है, आई थिंक वो एक तरीके की एक होप देना है बच्चों को कि एट द एंड ऑफ द डे हम फिर स्कूल जाएंगे। टुडेज वेबिनार आई वांटेड टू स्टार्ट विथ कि जो हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, जो हम अपना वातावरण बोलते हैं, हमारे लिए वातावरण कितना जरूरी है ये हमें आइडिया भी नहीं है। पर जब हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कोई भी पेरेंट्स हो, कोई भी इकोनॉमिक स्ट्राटा से हो, जो हमारे बच्चों का वातावरण है इस समय वो चेंज हुआ है। उन्हें वातावरण वो नहीं मिल रहा जो उनके मानसिक और शारीरिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। और यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा कि हम घर बैठे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि घर बैठ के भी बच्चों को माँ बाप यही बोल रहे हैं, चलो चलो स्कूल जाना है, क्लास का टाइम हो गया, जल्दी सो, सुबह उठो। क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वो अपने घर के वातावरण में, जहाँ वो रिलैक्स्ड हैं, जहाँ वो चल रहे हैं, जहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। बट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू पुट डिसिप्लिन, हम एक अनुशासन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये सबसे मुश्किल समय है। हमें लगता है हाउसवाइफ्स के लिए, हमें लगता है हमारे आदमियों के लिए, या जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए है, हमें अंदाजा भी नहीं है कि इस टाइम पे बच्चों के लिए इट इज सच अ डिफिकल्ट पीरियड, जहाँ हर बच्चा कोई ना कोई मुश्किल से उलझ रहा है, मानसिक, शारीरिक या फिर सोशल एंड इमोशनल, जहाँ वो बच्चा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में फंस रहा है। टू स्टार्ट विथ, जैसे मंजू जी ने कहा कि स्कूल्स बंद हो गए तो सबसे पहले तो खाने पीने और बेसिक्स की जरूरतों, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, हम उन पर फोकस कर रहे थे। बट व्हेन वी रियलाइज कि ये कोरोना अभी जल्दी नहीं जा रहा, ये पैंडेमिक अभी है, तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, एजुकेशन को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। बट एजुकेशन के साथ हमें ये भी देखना था कि मानसिक और शारीरिक ग्रोथ जो एक बच्चे की स्कूल में होती है, हम उस चीज का फायदा या हम उस चीज की बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या हम वो आगे बढ़ा पा रहे हैं। एंड लाइक शी सेड कि गवर्नमेंट ने सिलेबस कम किया है और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं यूज करी हैं। हमारे अपने स्कूल्स में हमने देखा है जिन बच्चों के पास एक्सेस नहीं है कंप्यूटर्स का या लैपटॉप्स का या आईपैड्स का, उन बच्चों को टीचर्स अलग से वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज लागू कराई है। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग इट। बट रियलिटी वर्सेस जो हम कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो बहुत दूर है अभी भी। क्योंकि जो बच्चे हैं वो शायद मानसिक तरीके से अभी भी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर बेसिक वैल्यूज, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, जो हम पढ़ाई के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो तो एक चीज है। बट पढ़ाई के अलावा हमारा बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है स्कूल में। हम हमेशा यही कहते आए हैं कि स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चा सीखता है,
जैसे वैल्यूज, बिलीव्स, अपने बारे में समझ, अपने आसपास में लोगों से कैसे सीख करनी है और कैसे समझना है, ये सारी चीजें इस टाइम पे थम गई हैं, क्योंकि वो बच्चा इस टाइम पे अपने घर के वातावरण में, अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में, शायद कुछ तो पेरेंट्स की सुपरविजन में भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जैसे उन्होंने कहा गांव चले गए हैं, वहां पे दे डू नॉट हैव एक्सेस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये इंटरनेट है, आप एक चीज खोलते हो 15,000 चीज खुलती है और बच्चा बहुत ज्यादा गुम जाता है, डिस्ट्रैक्टेड है। सो मेंटली वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ chaos in children. Education is one part of it, which we as a government, we as an institution, and we as parents, हर एक जना अपने अपने लेवल पे कर रहा है, बट जो बच्चा है वो बहुत ही chaos के बीच में खड़ा है, उसे समझ कुछ नहीं आ रहा। दे मे बी enjoying it, जरूरी नहीं है कि गलत ही है, बट बहुत सारी चीजें ना उलझ गई है, क्योंकि एनवायरमेंट मिक्स हो चुका है, जो रियल एनवायरमेंट है वो तो उसे मिला ही नहीं। सो बच्चों को डिफिकल्टीज आ रही है। आप बड़े से बड़े स्कूल ले लीजिए या बेसिक से बेसिक स्कूल ले लीजिए, हर बच्चा इस समय अपनी उलझन में उलझा हुआ है, एंड दे आर फीलिंग द प्रेशर, द पेरेंट्स प्रेशर, द एकेडमिक प्रेशर, द पेयर प्रेशर, द टीचर्स प्रेशर, द असाइनमेंट प्रेशर, द स्टडी प्रेशर, and most importantly the self confidence pressure. I am not good. These are pressures that we are dealing with, apart from the fact that educationally or academically a child needs to progress. Right. So these are certain issues that I feel children are really trying to cope up. Right. Yeah. एब्सोल्युटली, आई थिंक हम सब करिश्मा आपसे कंप्लीटली अग्री करेंगे। और क्योंकि आप प्रेशर की बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन है जो मैं मंजू जी से पूछना चाहूंगी, विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ ऑन आवर टीचर्स। तो मंजू जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त हमारा जो पूरा सिस्टम है वो काफी मल्टीटास्क कर रहा है। जैसे आपने कहा कि वो खाने, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं, बच्चों को पढ़ाने में भी, एकेडमिक कंटेंट क्रिएशन में भी। तो आपको क्या लगता है कि इसको सिस्टम या आप सब उसको कैसे बैलेंस करेंगे? और उसके साथ में अगर आप कुछ अचीवमेंट्स शेयर करना चाहें एसडीएमसी के या दिल्ली स्टेट के कुछ अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, इस समय जो था, जैसे आपने बात की थी पढ़ाई का, क्योंकि स्कूल से टीचर्स का और बच्चों का एक पढ़ाई से ही मेन रहता है, लेकिन इस बार एमएचआरडी की गाइडलाइंस भी आई है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अब रिटर्न वर्क ही नहीं है, उसको डेली लाइफ के साथ जोड़ना है। बच्चे को हर प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करना है। जैसे वो घर में है तो घर में उसको एक्टिविटीज कराई जाए, जैसे टीचर्स ने योगा के वीडियोस भेजे, प्राणायाम भेजे, पेरेंट्स ने बहुत लाइक करे, पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम करेंगे, छोटी छोटी स्टोरीज सुना रहे हैं। जो पहले कहानियां होती थी जो बीच में अब खत्म हो गई थी, वो फिर से आ गया है। बच्चे स्टोरी सुन के उससे क्वेश्चन निकालते हैं, मम्मी पापा क्वेश्चन बना सकते हैं, बच्चे उनका आंसर दे सकते हैं। और क्योंकि वो भी घर पे हैं, अब स्टार्ट हुआ है, पहले तो वो घर पे ही थे जब लॉकडाउन था, अब थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ है, तो अब टीचर्स उनसे पूछ के अकॉर्डिंगली उनके पेरेंट्स के पास कब समय है तभी हम उनको पढ़ा पाते हैं। जब वो टाइम देते हैं उस टाइम हमारे टीचर उनको कंटेंट भेजते हैं। वो कहते हैं कि मैं शाम को आऊंगा, तो हम शाम को टीचिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, अभिभावकों पे। जब वो कहेंगे कि हम फ्री हैं, इस समय बताओ पढ़ाओ, मैं आप फोन बच्चे को दूंगा, तो उसी समय वो करते हैं। अदरवाइज टीचर्स नो डाउट इस समय बहुत काम कर रहे हैं। राशन का किया, फूड हंगर सेंटर्स पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उसके बाद ड्राई राशन किया। नाउ दे आर डूइंग सर्वे आल्सो, एरियाज में जाके सर्वे भी टीचर्स कर रहे हैं, एंड वी आर रोटेटिंग दैम, रोटेशन में ड्यूटीज लगा रहे हैं। कोई पढ़ाई के कंटेंट कर रहे हैं, कोई सर्वे में जा रहे हैं, कोई बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत इस समय बहुत चैलेंज है, और वो तो सबके लिए ही है, और उसको हमें बहुत हंसते हुए अच्छी तरह हम लोग टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि करिश्मा जी भी यहाँ जुड़ी हुई है, हम भी काउंसलिंग सेशंस भी हम करवा रहे हैं टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में, कि इस समय बच्चों को फोन करके पूछना कि आप कैसे हैं। जैसे आपने बताया कि बहुत जरूरी है, बच्चा क्योंकि घर पे है और वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं हम,
तो हम घर पे उसको बातचीत करके, सैटरडे को क्योंकि हम स्कूल्स में बैग फ्री डे रखते थे, एक्टिविटीज करवाते थे, तो वी हैव स्टार्टेड दैट आल्सो कि वो छोटे छोटे प्रैक्टिकल करें साइंस के, कुछ बनाएं जो घर में चीजें हैं, किचन में, रसोई में जो है, उसमें पेरेंट्स की हेल्प करें और उसमें कुछ से कुछ सीखें भी। तो वो बहुत अच्छे प्रैक्टिकल करके हमको वीडियोस भेजते हैं, शेयर करते हैं हमारे साथ, और बहुत अच्छा हमने उनको वीडियो में एक मास्क बनाना सिखाया था। तो बहुत सारी लड़कियों ने, लड़कों ने बहुत सुंदर मास्क बनाए हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए। और सैनिटाइजर हमने जैसे उनको सिखाया कि सोप मंजू जी आपकी डिश में आवाज, मिला के बनाओ, हाउ टू हैंड वॉश का जिस तरह इम्पोर्टेंस है कि बेटे हमेशा हाथ धोना है, कोई भी चीज बाहर से आती है, तो दे हैव स्टार्टेड दैट प्रैक्टिस आल्सो। मंजू जी आपकी आवाज आई थिंक हैंड वॉश कर रहे हैं, पेरेंट्स को करवा रहे हैं, नियर बाय अपने कजन्स को करवा रहे हैं। तो बहुत ही इसका वो जितना यूज हम बच्चों का घर पे वो बैठे हैं, उनकी एक्टिविटीज करवा के कर सकते हैं। छोटा छोटा टाइम उनके साथ आपको टीचर्स स्पेंड कर बनाया है, एक दिन वर्क उनको करा अच्छा लगता है, उसको फिर रिपीट कर देते हैं। पसंद आ रही है स्टोरी भेज दो मैडम, उसमें से क्वेश्चन बना के भेजते हैं, फिर पेरेंट्स और दोनों लेबर क्लास होती है बाहर, उनको भी बहुत अच्छा है, हमारे पास चेंज करवा रहे हैं, अच्छा उसी तरह से। जी थैंक यू, थैंक यू मंजू जी फॉर शेयरिंग सच वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं करिश्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ आर चिल्ड्रन कोपिंग विद दिस न्यू एजुकेशन, आई वोंट कॉल इट सिस्टम बट मे बी दिस न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। तो आपको, आपके हिसाब से कैसे बच्चे इससे कोप अप कर पाएंगे? सो देयर इज ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए जरूरी है इस समय, एंड प्रेशर तो बहुत है लाइक आई सेड, एंड इस प्रेशर के साथ डील करने के लिए ऑफ कोर्स स्कूल, गवर्नमेंट, पेरेंट्स सब कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ग्राउंड लेवल पे इफ यू आस्क मी, there are very basic things that we as parents and we as a society need to understand what we can do as a change. For example, schools, जैसे मंजू जी ने कहा, जो उनकी बात से मुझे समझ आया, making calls to the school children and asking them are you okay. जब हम अपने बच्चों से सिर्फ इतना पूछते हैं आप ठीक हैं, it makes so much difference to a child, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारा गुरु, हमारी टीचर हमारे पेरेंट्स से भी बढ़कर है। मेरी मैम ने मुझे ये कहा है, मैं यही करूंगी। जब हमारी मैम हमें एक्नॉलेज करती है इतने मुश्किल टाइम में, that is when the child actually feels appreciated and acknowledged. Secondly, I also think that बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है, जो हम शायद कभी कभी मिस कर जाते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि बच्चों के स्कूल सुबह 9 बजे से रात दोपहर को 3-4 बजे तक चल रहे हैं, तो उसमें बच्चे का प्रेशर, बच्चे के फिजिकल माइंड पे प्रेशर, क्लास खत्म होने के बाद बच्चे के ऊपर होमवर्क का प्रेशर, या फिर उसको एकेडमिक मूवमेंट का प्रेशर। हमें ये याद रखना है, हमारा बच्चा इस टाइम पे कोरोना के पीरियड में घर के बाहर कदम नहीं रख रहा, वो पूरा दिन एक स्क्रीन के आगे बैठकर सिर्फ सुन रहा है या कर रहा है जो उससे रिक्वायर्ड है। इसीलिए इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हम अपने बच्चों से बात करें, उन्हें अवेयर करें, चाहे छोटे बच्चे हैं, अगर क्लास 1 या 2 के भी बच्चे हैं, ये हमारी सोच है कि हमारे बच्चों को समझ नहीं आएगा,
बट अगर हम अपने बच्चों को क्लियरली समझाएं कि बेटा अगर आप उठ के थोड़ा सा वॉक करोगे आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा, थोड़ी जंपिंग जैक्स कर ली, थोड़ी मूवमेंट कराई, थोड़ी देर उनकी आंखों को you give them a little period of peace from the screen time. These are issues that can actually help the child in moving towards positivity and taking and accepting this way of life. ऐसी बात नहीं है कि कोरोना ने हमें सिखाया नहीं है या ये पैंडेमिक में हम समझे नहीं है, हमारे बच्चे भी बहुत चीजें सीखे हैं इस कोरोना के पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चों से बात करते हैं, मैंने बहुत बार टीचर्स को सुना है बच्चों से बात करते हुए कि आपकी क्या खाने की लाइक्स और डिसलाइक्स है, आपका क्या, आप समय कैसे गुजारना चाहते हैं, would you like to think about the choices you want to make in the future, why don't you explore certain other ideas कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं। यही समय है अपने बच्चों से जुड़ने का और यही समय है एज एन इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को मोटिवेट करने का, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट दे रही है सिलेबस कम करके, प्रेशर है अनडाउटेडली है, बट एट द सेम टाइम I genuinely feel that the children are feeling the pressure of कि मुझे अपनी असाइनमेंट्स पूरी करनी है, जो ये प्रेशर से डील करने का टाइम है, ये एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एजुकेशन सिस्टम, बच्चे पता है अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले मुझे क्या लाके देते हैं, देखो मम्मी गवर्नमेंट ने बोला है 2 से ज्यादा क्लासेस नहीं करनी, मम्मा देखो मैम ने बोला है ये है वो है। Children are also reading the newspaper. They feel happy कि गवर्नमेंट ये कह रही है और मम्मा आपसे तो हमारी छुट्टी है। The minute our child comes to know कि हॉलीडे है, वो स्कूल की वेबसाइट पे जाके ढूंढते हैं हमें भी छुट्टी मिल रही है या नहीं मिल रही। So children are as aware. We are not the only ones getting aware. हमारे बच्चों को पूरी सूचना है और वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है आज की डेट में। But yes, there are fears. इंटरनेट हैज बिकम अ वेरी बिग मेनिस, बहुत बड़ी एक दुविधा भी है ये इंटरनेट, और जहां पर एक्सेस मोबाइल्स पर है बच्चों के लिए, आप एक चीज खोलते हैं, जैसे मैंने कहा 15 चीजें खुल रही हैं, वहीं पर बहुत डर भी है कि बच्चे गलत चीजें भी देख पा रहे हैं। और यहीं पे एज पेरेंट्स आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे बच्चे अगर लैपटॉप आईपैड्स पर बैठे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और इसी समय आकांक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टाइम पे मानसिक तरीके से ना बच्चा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और एंगर मोड में जा रहा है, क्योंकि बच्चे के पास बहुत चीजें करने के लिए नहीं है और बच्चा दिन पर दिन बड़ा ही हो रहा है, चाहे आप 5 साल का बच्चा लीजिए या आप 12 साल का या आप 15 साल का। तो बच्चे जब बढ़ रहे हैं और उनकी मानसिक गति भी बढ़ रही है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। कि बहुत बार मैंने बच्चों को सुना है स्कूल क्लासेस में भी बोलते हुए, आंटी या तो मम्मा ये कह रही होगी डू दिस डू दैट, या वो कह रही कि डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट, उसके आगे कोई बातचीत नहीं है। यहाँ पे हम फर्क लाना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट ओनली एकेडमिक ओरिएंटेशन, एजुकेशन इज जब हम पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक बच्चे को पूरे साइड्स, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल साइड से बड़ा कर रहे हैं। जैसे मंजू जी ने कहा कि स्टोरीज का माध्यम इतना साधारण है बट इतना सुंदर माध्यम है अपने बच्चों से जुड़ने का, टीचर्स जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आई हैव सीन इट विद अ लॉट ऑफ स्कूल्स बिकॉज आई हैव सीन इट विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन कि बच्चों के साथ स्टोरीज एंड कॉन्वर्जेशंस अबाउट क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपके घर में क्या हो रहा है, इन चीजों की जब हम बातें करते हैं बच्चा ओपन होता है। बिकॉज इस टाइम पे अगर बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक मानसिक बडी सिस्टम की, जहां इमोशनली मेंटली एक बडी उसके साथ हो। आपको पता है आजकल स्कूल्स में अगर हम ग्रुप्स भी बनाने की बात करते हैं, जो बच्चे इंट्रोवर्टेड, जो ज्यादा बात नहीं करते, वो बच्चे अपने आप में इतना घबरा जाते हैं कि शायद हमारे साथ तो कोई ग्रुप बनाएगा ही नहीं। यहीं पे I would actually like if as a school system, as an organization and as teachers, if we can put 2 and 2 together and say कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ सपोर्ट सिस्टम बने। जब हम सपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, जो काम की ग्रोथ है
वो ना कि डबल होती है, बट बच्चा भी कॉन्फिडेंट फील करता है बिकॉज देयर इज अ पिलर सिस्टम, हम एक के साथ एक को जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं. सो दीज आर फ्यू वेज दैट आई थिंक, Akansha, this education system at this time can be reformatted. Also, अगर हम सिलेबस को कम कर रहे हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है जैसे अब्रॉड देयर आर सो मेनी डिफरेंट पैनोरामाज ऑफ सब्जेक्ट्स जो बच्चे चूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस, एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, which do not require, जहां बहुत जरूरत नहीं है हमें किताबें या बहुत सारी चीजें करने की. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हम बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं. अगर इस टाइम पे एकेडमिक प्रेशर को कम कर कर दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आगे लाएं, तो बच्चों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो पढ़ाई स्कूल की तरफ और मोटिवेटेड होगा. और अगर हम बच्चों को जोड़ते हैं तो मानसिक तरीके से हम बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे एक 10 साल का बच्चा भी अपनी मम्मा की हेल्प नहीं लेना चाहता. वो बोलता है मेरा फ्रेंड है, हम कनेक्ट करके कोई प्रोजेक्ट, कोई सिस्टम, कोई रिसर्च कर सकते हैं. So I think these are a few ways that we can actually push our children in the right direction of education instead of just academic growth. Yeah. थैंक यू सो मच करिश्मा. आपने आई थिंक एक अलग ही सेशन के लिए हमको एक स्कोप दिया है कि जिसमें हम एक्चुअली बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट वी इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, बट हम एजुकेशन को किस तरह से कपल कर सकते हैं और चीजों के साथ, टू मेक श्योर दैट वी यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू मे बी गिव आवर चिल्ड्रन अ न्यू direction. So wonderful, thank you so much. Now मोनिका जी, आपसे मेरा एक सवाल है, and I think it talks about the rights. तो अगर हम देखें कि आरटीई एक्ट के अंदर हमारे किस तरीके के राइट्स हैं, और कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन आपको उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट दिखता है, तो वी वुड रियली लव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट. तो आप अगर प्लीज शेयर करिए. जैसे मैंने पहले बताया, आर्टिकल 2A ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया. उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, which describes the importance of free and compulsory education between the age group of 6 to 14. It makes it very clear it is one of the most important fundamental right. I have just explained in my earlier answer. Objective क्या है इस act का? We'll come to the rights later, but what is the main objective behind this act is that a child between 6 to 14 should receive quality elementary education irrespective of their economic or caste background. This also includes children who've been forced out or have been dropped out of schools. Now we come to the basic rights and features that are available under this act. This act talks about free and compulsory education till the completion of elementary education in our neighborhood schools. So हर neighborhood में एक school का होना बहुत जरूरी है. Within a distance of say 1 kilometer, there has to be a school. It clarifies compulsory education. What do you mean by compulsory education? That हर government का, it is their responsibility to provide free and elementary education and ensure compulsory admissions, attendance, and completion of elementary education to every child in the 6 to 14 group. Free education means सिर्फ ये नहीं कि आप फीस नहीं देंगे, इसका ये भी मतलब है आप यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, किताबों, किसी का चार्ज नहीं देंगे. No one is going to charge you for this. It also requires private schools to reserve 25% seats to children from EWS category, which is economic weaker section, and also other disadvantageous group. It makes further provisions for non-admitted child to a admitted at age appropriate class. ये provision मैं बाद में discuss करूंगी, because according to me, that's my personal approach. I feel that there is something wrong with this provision, and we'll discuss about this later. It also specifies the duties and responsibilities of appropriate government. ये concurrent list में आता है, जिसमें state और center दोनों का role होता है. It also tells local authority and parents
details how to provide free and compulsory education and sharing of financial and other responsibilities between the center and the state government. It lays down norms and standards relating to student and teacher ratio. So 30 बच्चे हैं, उनकी एक टीचर होनी जरूरी है. ये नहीं कि 60 बच्चे हैं और टीचर एक है. So that ratio is defined in this. Then the building and infrastructure of school, working days of children, of teachers are provided in this act. It also provides, it's very important for rational deployment of teachers by ensuring the specific pupil-teacher ratio is maintained for each school, rather than just an average for a state or a district or a block. This also ensures that there is no urban-rural imbalance in teacher posting. यानी कि rural में कुछ और हो रहा है और urban में कुछ और हो रहा है. Very importantly, this act also prohibits any kind of physical punishment, mental harassment, screening procedures for admission for children, donations, as you say, capitation fee, private tuition by teachers, running of school without recognition. These are very important issues that have been tackled under this act. It further provides for development of curriculum in consonance with the values enshrined in the constitution. So मैंने पहले question में explain किया why to me education becomes the most important thing, in which we ensure all-round development of a child, building on child's knowledge, potential, talent, making the child free of trauma, anxiety through a system which is child-friendly, and a manner in which we can teach the child according to his own skills. You know, we can try and understand how the child wants to develop in this field. It also gives us flexibility under this act. I mean, I've seen a lot of provisions which also give us flexibility to teach the child in proper manner, the way the child wants to learn. But जैसे हर act में benefits होते हैं, rights होते हैं, this act also has inherent flaws. While appreciating the act and the rights guaranteed under this act, I also see inherent flaws, which of course is my personal opinion, and criticism of any kind is very subjective. And I won't say, and I'm sure other people will have their different views. On one hand, when we talk about this act, that it gives education, we miss a very important issue here, the age limit for free and compulsory education stipulated under this act, because it has direct consequence on the adolescent labor laws. 14 साल की उम्र तक आप बच्चे को पढ़ाते हैं. जैसे ही बच्चा 14 साल के बाद निकलता है, आपको भी पता है adolescent labor laws जो हैं बहुत रिलैक्स, चाइल्ड लेबर लॉ के अंदर जो adolescent ब्रैकेट है वो लेबर लॉज को बहुत रिलैक्स कर देता है. उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है काम करने की और रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है. सो जब बच्चा निकलता है उसके पास चॉइस नहीं रहती है. वो बच्चे के पास पढ़ने के लिए मीन्स नहीं है, बिकॉज उनके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यू कर सके. ये स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के लिए है. And therefore, I somehow feel that the right to education provides for an elementary education, but the system is skewed to push them into adolescent labor at a very young and impressionable age due to lack of thought and means to continue education beyond 14 years. To see what recently in 2019 PIL file हुई थी, seeking free education for children for EWS category and disadvantaged group beyond 14 years till class 12 in private unaided schools. आज तक उस hearing में कुछ खास नहीं हुआ, because there are problems, and I'm not saying it's an easy thing, not for the government also. One has to think of major policy decisions before we take this stand. So it's not like आज किसी ने बोला या किसी ने कुछ file किया, immediately हमें वो मिल जाएगा. But that also gives us a thought that we need to really work on this. This is not enough. This is more of a literacy, I would say, than educating our children. You know, I certainly see a difference between education and literacy. The second most important issue that I see in the Act is Section 4, which makes special provision for children not admitted or who have not completed the elementary education. Like for example, कोई 10 साल का बच्चा है, वो आज तक स्कूल नहीं गया, आप उसको सीधा 4th क्लास में डाल दो या 5th क्लास में डाल दो. I don't think it's a very fair way of going about it. I have 2 children. As a mother, I'm telling you,
मेरे दोनों बच्चे संस्कृति में पढ़ते हैं, एक बच्चा 5th में है, एक बच्चा 6th में है। अब 6th क्लास का बच्चा साइंस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ रहा है। आप एक ऐसे बच्चे को लाके जो 12 साल का है या 10 साल का है, जिसको क ख ग या एबीसी नहीं आता, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? आप कितनी भी स्पेशल टीचर्स की बात करते हैं, हमें भी पता है हमारी गवर्नमेंट की लिमिटेशंस है जो हम समझते हैं, एंड इवन प्राइवेट स्कूल्स की लिमिटेशंस है जो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो वो बच्चा जो उस क्लास में गया है वो कुछ महीने में इंटरेस्ट खो देगा, वो नहीं कंटिन्यू करना चाहेगा, बिकॉज इट्स नॉट इजी। आप ऐसा बर्डन उस पर डालेंगे उस स्टैंडर्ड का, जो बच्चे को कुछ नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। On a practical level, I see that the student who's enrolled in such category and the level of understanding, we'll get more and more answer, and it's without any debate. I mean, the more you start interacting with the child in that standard, he will not be able to even speak to you on those lines. It's very difficult. Thank you. I think these are the two major flaws that I see. मोनिका जी, इसी के साथ अगर आप बिफोर वी टेक अनदर क्वेश्चन, आई थिंक आई सी अ वेरी रेलेवेंट, आप इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोविड के चैलेंजेस के टाइम में आप इसको कैसे देखते हैं? इफ यू वांट टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ Akanksha, I'll just tell you, कोविड सिचुएशन के बाद तो सब कुछ ही चेंज हो गया है हमारे। मैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रही, जो unfortunately, I mean, I'm talking about the disadvantageous group and EWS category. उन बच्चों के पास जिनके घर में एक स्मार्टफोन है और 3 बच्चे हैं, ये मैं आपको अपनी पर्सनल इंटरैक्शन से बता रही हूँ। एक फैमिली में किसी के ड्राइवर थे जिनके 3 बच्चे हैं और एक स्मार्टफोन है। उनके घर में रोज इस बात पे लड़ाई होती है कि किसकी क्लास अटेंड होगी। रोज होमवर्क मिल रहे हैं, यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, वो बच्चा रोज क्लास मिस कर रहा है, बट उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर सॉल्यूशन, वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म। ऐसी जब सिचुएशन आती है बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आती है, ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देते हैं। बट अभी जो आज हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है वो दे आर गोइंग बियॉन्ड आवर मींस। व्हाट इज हैपनिंग इज, जो बच्चा सडनली एजुकेशन से बाहर हो गया है, वो काम करने लग गया है। बिकॉज मैं आपको बार बार लेबर लॉ में इससे ले जा रही हूँ, बिकॉज लेबर लॉ में एक प्रोविजन है, ड्यूरिंग स्कूल टाइम कोई बच्चा काम नहीं करेगा। जहां स्कूल बंद हो गए वहां पे उनको एक लूप होल मिल जाता है कि अब तो बच्चा काम नहीं कर रहा, स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास इनके लिए हो नहीं सकती, तो बच्चे काम पे आ गए। जहां पे वो काम पे आए, जिनके स्पेशली पेरेंट्स को लॉकडाउन के टाइम निकाल दिया गया है जॉब से, उनके पास रहने के या खाने के साधन नहीं है, तो वो बच्चे के पास चॉइस नहीं बच जाएगी। वो उस टाइम अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचेगा। जब भूख लगती है तो पढ़ाई समझ नहीं आती, तो वो काम करने जाएगा। और हम कितना भी अपने आप को जस्टिफाई करें, इंटेलेक्चुअल बात करें कि नहीं पढ़ना ही बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए, नहीं समझ आता उस टाइम। जब भूख लगती है इंसान को खाना चाहिए होता है, पढ़ाई नहीं। On a practical level, I'm telling you, I've seen a lot of kids, because I started distributing food to a lot of these areas, and I was seeing children, no one was even close to talking about education. वो बच्चे खाने के लिए भाग रहे थे, उनके माँ बाप की जॉब चली गई थी, लोग मेड्स को घर पे नहीं बुला रहे थे, काफी लोगों ने उन्होंने सैलरी देना तक बंद कर दिया। आप उनके बारे में सोचिए वो किस सिचुएशन में थे उस टाइम। Of course, we have to do a lot of things. We have various things that we can plan about, and we can think about CSR policies. We can think about, spreading the word. We can think about tying up with FMs. We will of course come to that later. But as of now, I see lot of problems coming in this sector that we need to overcome. Would you like to go further, Akanksha, on how we can try and tackle this problem, or? I think tackling the problem is one of the question that I have put. तो उसके बारे में हम आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। मंजू जी, एक क्वेश्चन मुझे आपसे था, एंड दिस इज कनेक्टेड टू व्हाट मोनिका जी वाज जस्ट सेइंग, कि आपके ओपिनियन में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक सिस्टम या पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बट एक लार्जर कम्युनिटी को साथ में आना होगा, तो आप किस तरह से देखते हैं कि हम एक जो न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ बदलने वाला है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रोल ऑफ सोसाइटी? हम एक सोसाइटी
कि के रोल को किस तरह से देखते हैं इस न्यू नॉर्मल को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में। मंजू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक उनकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है? आई थिंक इट्स द इंटरनेट इशू। आपकी आवाज नहीं आ रही है मंजू जी। नहीं आ रही है आवाज। Maybe she can connect call device, कभी-कभी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। She's on the mobile. आई थिंक मैं उनको कॉल करने की कोशिश करती हूँ। या she's working on it। अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। I think Akanksha, you can take the question from Karishma and then go back to Manju ji. मैं meanwhile I'll try to connect with her। ठीक है। So करिश्मा आपसे भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का एक सवाल है कि एज अ सोसाइटी और एज एन इंडिविजुअल हम बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं इस सिचुएशन में से बाहर कोप अप करने के लिए। So as a society, like I said, one is पीछे गवर्नमेंट ने एक चीज डाली थी, each one teach one. So something like that where we all could take an initiative, जहाँ हम हर एक जना I think कहीं ना कहीं कोरोना टाइम्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये चीज कही थी, when we adopt a family, when it comes to education, even if we as a family, अगर हम एक यूनिट की तरह एक एक बच्चे की भी जिम्मेदारी ले जिसे हम सिखा सके, I think that would be a great initiative to start with in the field of education, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारे भारत की जो नस्ल है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो हर एक जना आपस में पढ़ा लिखा निकले और एजुकेटेड निकले। बिकॉज आज की डेट में जितना जरूरी हमारे लिए खाना पीना राशन और रहना है, आई थिंक अगर हमें दुनिया में सर्वाइव करना है, एजुकेशन उतना ही जरूरी है। एज अ सोसाइटी आई डेफिनेटली थिंक अगर हम बच्चों के साथ वैल्यूज और उनके सिस्टम्स पे बात करें, जहां हम उन्हें बेसिक नीड्स, आई थिंक सो आई थिंक जब हम वैल्यूज की बात करते हैं एज अ सोसाइटी, जो हम वैल्यूज बच्चों में डालना चाहते हैं, अगर हम उन्हीं वैल्यूज को अपने आप पे लगाएं जहां हमारे बच्चे देख रहे हैं। सबसे जरूरी बात ये है आकांक्षा दैट बच्चों को ये जरूरी नहीं है कि क्या सिखाया जा रहा है, बच्चे क्या देख रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। एंड इफ आई एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन of this city and country and at the same time as a responsible parent, अगर मैं जिम्मेदारी लूं अपने बच्चे की और अपने बच्चों के साथ किसी एक बच्चे की पढ़ाने की या चीजें प्रोवाइड करने की, तो शायद एक चेंज की तरफ, हम एक नई दिशा की तरफ मुड़ सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में बहुत जरूरी है कि बच्चों की बातें सुनी जाए और बच्चों से बातें करी जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को सिर्फ ये लगता है क्योंकि बच्चे घर बैठे हैं, तो क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो सारा दिन कोई ना कोई कामकाज में लगे हैं, टीवी देख रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी मुझे कहते हैं कि मैम हमारे बच्चे, हमारी मम्मी को सिर्फ ये लगता है कि किताब खोल के बैठी हूँ तो पढ़ रही हूँ। हमें यहीं पर एक नई सुबह करनी है, एक नई सोच आगे करनी है, जहां हम अपने बच्चों के साथ ये आइडियाज शेयर करें कि अपने बच्चों के साथ हम किस तरह
एक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ग्रोथ और मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जाएं, जहां हम अपने बच्चों को सिखाएं, आज हम अगर ड्रीम कर रहे हैं, कल हम इस ड्रीम की तरफ भी चल सकेंगे। दिस इज द टाइम टू सिट and connect with your child so that we are able to be together and we are all in this together. कोरोना के टाइम पे हम अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज में ये कहते हैं कोई नहीं, हम सबके साथ ये हो रहा है। हमारे बच्चों को ये नहीं लगता। हमारे बच्चे को ये लगता है मैं सफर कर रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए we need to take this as a personal responsibility, as parents, as adults, as good Samaritans of the society, जहां हम इस चीज को जोड़ सके। बहुत जरूरी है कि हम अपनी टीचर्स, हम अपने स्कूल, हम अपने टीचर से ये पूछ सके कि क्या मैं किसी तरह से मदद कर सकती हूँ दूसरे बच्चों की या क्लास में सारे बच्चों की। अगर हर पेरेंट एक इनिशिएटिव ले तो जो बच्चा थोड़ा सा वीक है या उसके पास सारे इंटरनेट और सारी सुविधाएं नहीं है, शायद मैं उसको वो चीज प्रोवाइड कर सकूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सोसाइटी दैट वी स्टार्ट कमिंग फोर्थ एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जब कोरोना शुरू हुआ था तो खाने की मुश्किल जब आई थी तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने आगे बढ़कर कहा हम खाना प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर हम एज सोसाइटी, एज पेरेंट्स, अगर हम अपने स्कूल्स में जाके ये कहें कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमें बताइए, क्योंकि लाइक मंजू जी सेड, ये मुश्किल टीचर्स को भी बहुत है क्योंकि उन्हें लेसन्स प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं, उन्हें नए तरीके से लेसन्स प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं, उन्हें हर बच्चे को ध्यान में रखकर ये काम करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं इट्स अ सोसाइटी एफर्ट, इट्स अ ग्रुप एफर्ट in taking this education ahead. And like I said, इस समय एजुकेशन को हम एक नई दिशा में एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हम ले जा सकते हैं। So I think this is a right time to take it ahead. थैंक यू करिश्मा, आपने जो पेरेंट के रोल और एक लार्जर कम्युनिटी के रोल को इंडिकेट किया है। मंजू जी, आप आवाज अब सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी तो मुझे आ रही है सबकी। अच्छा, हमें एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो मंजू जी, मैं ना, क्योंकि हमारे पास टाइम अब थोड़ा कम रह गया है, तो मैं क्विकली 2 क्वेश्चंस को क्लब कर दे रही हूँ और आप एक आप मैम, जैसे अभी करिश्मा ने हाईलाइट किया रोल हमारे पेरेंट्स का, तो आपके हिसाब से सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है इस पूरे सिचुएशन में, और प्राइमरी एजुकेशन का तरीके से आप फ्यूचर अब देख रहे हैं? तो हाँ जी आकांक्षा, इस बार तो जैसे पहले भी बताया हमने कि एमएचआरडी की गाइडलाइंस हैं कि शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए। केवल लिखित ज्ञान जो हम कह रहे हैं रिटन वर्क का एजुकेशन का वो नहीं है। अब आज के सिनेरियो को देखते हुए वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से हमें शिक्षा देनी जी। चाहे उसके डिफरेंट वेज निकालें, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं कि बच्चों को बताना कि पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प करें और पेरेंट्स के साथ योगा करें, प्राणायाम करें, जो आज की नीड है, जो करना है। जैसे अभी पीछे एनवायरनमेंट डे गया है, उसको सेलिब्रेट करवाया हमने, ड्राइंग्स बनाए, बच्चों ने शेयर करी। जो भी डे आ रहा है उसको हम ट्राई करते हैं कि सेलिब्रेट कराया जाए, बच्चे उससे सीखें। कोई डॉक्टर्स डे था अभी, उसका इम्पोर्टेंस बच्चों ने करा, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बना के शो करे ग्रुप में, तो बच्चे अपना आइडिया उसमें दिखाता है। आप अपने बारे में भी लिख रहे हैं, अपना घर कैसे स्पेंड कर रहे हैं, वो अपना कैसा दिन निकाल रहे हैं, उसके बारे में भी लिख रहे हैं। तो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम उनसे लेते हैं, लिखवाते हैं कि बेटा लिखो आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। और अभी हमने जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसके साथ हमने इनकी बुक्स भी पहुंचा दी पेरेंट्स के थ्रू, कि जब बच्चे को न्यू बुक मिलती है तो बच्चा बहुत खुश होता है, उसको फीलिंग आ गई है कि मैं न्यू क्लास में आ गया, और वो अपनी नई बुक्स को खोल रहा है, पढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस अब कर रहा है। जो कि पहले क्योंकि पुरानी बुक्स के साथ वो करता था, अब उसको न्यू स्टार्स की बुक आ गई क्योंकि लोग सब अपग्रेड हो गए हैं, तो बहुत ही खुश हो रहे हैं और उसको देख के बहुत अच्छी तरह से ग्रुप्स में वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चैलेंजेस हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए एनजीओज और हम सबको काम करना है और फील्ड में जाना है।
इनके पास तक, जैसे मैंने बोला, बहुत लोगों के पास फोन है जिनका वो यूज नहीं करते, घर में ऐसे ही पड़े हैं। वो एक आइडिया, एक थीम सोसाइटी लाएंगे ताकि वो कलेक्ट हो पाए और फिर हम उनको, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको वो दे पाए। हैं ऐसे एक दो से हमने बात की है, वो आ रहे हैं अभी, और छोटे छोटे एरिया से अब स्टार्ट करेंगे, 50 100 के। तो इस तरह एक को इनिशिएटिव स्टार्ट होता है, जब हम उसको डालेंगे ग्रुप में तो और भी बहुत सारे लोग आगे आएंगे। जैसे कि बताया अभी करिश्मा ने कि फूड हंगर में भी बहुत लोगों ने खाने में आए हैं, लोगों ने बहुत खाने में दिया है, सरकार के साथ काम किया है लोगों के लिए। तो ऐसे ही जब आप लोग, जैसे खुशी भी एनजीओ है, कम्युनिटी में जाएंगे, आपके भी वर्कर्स जो है वो जाएंगे, वहां जाके उनको देखेंगे, समस्याएं उनकी सुनेंगे, या जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, तो हम उनको अपने साथ जोड़े रखेंगे। हमारा प्रयास अब बस यही है कि इस पीरियड के दौरान वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि जब वो आए तो फिर दोबारा से उस प्रोसेस को, स्कूल को हम नए तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। और नेचुरली कभी भी ऐसी उसमें तो कम्युनिटी और एनजीओ का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। थैंक यू मंजू जी, आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। और हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज जान के कि इट्स वेरी नाइस टू सी कि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। एंड आई एम श्योर कि एक कम्युनिटी, जब सब लोग एक ही जैसा सोचते हैं, तो वो इशू नहीं बनता, फिर वो एक अपॉर्चुनिटी रह जाता है। तो थैंक यू। मोनिका जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, और एक क्वेश्चन के साथ आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड भी करिए। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपके ओपिनियन में हम इस चैलेंज को अगर एड्रेस करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से सपोर्ट, किस तरीके का सपोर्ट हमको चाहिए, और हम व्हाट आर द बेस्ट वेज टू एड्रेस दिस? So I would request to respond to this question and also conclude this session. Monica, we can't hear you. मोनिका, आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear me now? हाँ, now, yeah. So I'll start by saying, once the lockdown was imposed and the schools were shut, the Ministry of Human Resource Development announced online classes to ensure continuation of education. The students from private school, as I explained earlier, who are fully equipped with their phones, latest computer, gadgets, with high-speed internet, continued their studies without any interference, break, or issue. However, sufferers कौन थे? Again, the children from EWS category and other disadvantages who are left without any alternative to secure their education due to lack of digital means. The switch from classrooms to the teaching, classroom teaching to online education has left them completely in the lurch. And if we see, Akanksha, only a minuscule section of children in rural India have access to internet. I mean, हम जब दिल्ली की बात करते हैं, everyone knows about internet, everyone has internet. But when you go to remote villages, they have no idea. They don't have anything. This would mean that most of such children would most likely drop out of school. That would mean end of education for them. It is a known fact that lockdown, lakhs of people have lost their jobs, especially in the informal sector, leaving their families struggling for survival, their children completely dependent on them. The only way they can aid survival is to work, as I explained earlier. What it does is the children immediately enter the labor market, especially because now the schools are shut. There are no digital means to continue education. Also, very important thing that they don't get midday meal, जो बहुत important attraction होती थी उस time बच्चों के लिए कि हमें खाना मिलेगा. They used to get good food. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी which I recently came across. एक 6th क्लास का बच्चा है जो वेस्ट दिल्ली में पढ़ता था. There were online classes going on, tests during COVID lockdown. उनके घर में स्मार्टफोन नहीं था. They tried to approach the teacher. They tried to approach the school. बहुत request किया कि मैं continue नहीं कर पा रहा. Please help us with some means. But nothing happened. This is again of a private school. There was no avail. In this story, a contractual driver who lost his job. And this is just one example, because there are thousands of children who are admitted under EWS quota in private school and struggling to continue their education.
But like we say, with every problem comes a solution and an opportunity. Recently, I read in Jharkhand, Bankhandi village in Dhuma district, there were several loudspeakers installed on the walls and on trees, you know, through which, on different locations, through which for 2 hours classes were given, voice classes were being given. Another example happened in Rai Bareli and Banda district in UP, where school management committee bypassed the digital divide and identified volunteers who would take classes for children who cannot or do not have access to internet. There are steps being taken. As I said, हमारी country में बहुत जुगाड़ possible है. We are full of potential. We can do a lot more. So, as I understand, what we can start by doing, this is a new normal as we understand, and we have no choice but to face it head on and think out of the box. There are few thoughts that come to my mind. One is with the help of government and corporates devoting a part of their CSR fund towards education initiatives. We can make efforts, like Manjuji very rightly said, repair second-hand electronic equipments through our Skill India program and distribute to the masses with subsidized internet plans. और चीज का फायदा होगा, ये हमारा ई वेस्ट भी टैकल करेगा. जो सारे फोन्स पड़े हुए हैं, प्लास्टिक फैला हुआ है, तो दोबारा से हम रिसाइकल करना शुरू कर देंगे. We can also think about pre-recorded video classes shared on WhatsApp group जो काफी लोग स्टार्ट कर चुके हैं, with a little help from teachers, alternately clearing the teacher-student doubts. बच्चों को घर पे मदद नहीं मिलती है, कोई EWS कैटेगरी के हैं, उनको टीचर से सवाल जवाब करने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं, तो ऑल्टरनेटली कोई ना कोई टीचर कभी एक टाइम फिक्स कर दे जो अवेलेबल हो, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे. टाई अप विद रेडियो चैनल्स. रेडियो एक ऐसा जरिया है कम्युनिकेशन का जो हर गांव में अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम वॉइस टेलीकास्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, जो मासेस में रीच हो सकता है. Government can ensure midday meals again, so that hunger does not push these children into labor markets. जब भूख इतनी आएगी, वो लेबर मार्केट में जाएंगे. तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं श्योर करना चाहिए, जैसे वो चल रहा था वो चलता रहे. Government should ensure that children who have been forced out of child labor during the pandemic, and this is very important, should be mapped. हमें सर्वे करना चाहिए and enroll in school again by providing them basic necessities. तो हमको रेगुलरली सर्वे कंडक्ट करते रहना चाहिए. जो बच्चा स्कूल से निकला है वो इस टाइम कहाँ है, उसको किस तरह से वापस लाना चाहिए. This is our responsibility now. I would end by saying this is a time of crisis. A well-rounded and effective educational practice is what we really need for capacity building of our young minds. They are full of potential. Don't let them go waste. Thank you. Thank you, Monica ji, for concluding this session for us. And उसके साथ में सारे पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ने हमारे साथ इतनी इम्पोर्टेंट इंसाइट्स अपने अपने काम से शेयर की. उसके साथ ही सारे अटेंडीज को भी थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने हमें कुछ सवाल पूछे. उन सवालों को हम यहाँ पर टेकअप कर पाए, कुछ हम नहीं टेकअप कर पाए. बट आई वुड रिक्वेस्ट all of you to check out our YouTube page, which is Khushi NGO. एंड हम वहां पर अपने जितने भी वेबिनार्स हमारे होते हैं, इस तरीके की नॉलेज शेयरिंग सेशंस, उनको हम वहां पे शेयर करते हैं. प्लीज आप इस वीडियो को भी बाय मंडे और ट्यूसडे आप वहां देख पाएंगे. एंड प्लीज विजिट आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. बाय.